हमारे नवीद साहब जो है माशाल्लाह चीफ गेस्ट है और बहुत दूर से हमारे हॉस्पिटल के लिए जो है आए, हमारी बहुत बड़ी खुशनसीबी है। और जो है नवीद साहब जो आके हैं और हमारे फोर्टिस के चेयरमैन साहब आएंगे अभी थोड़ी देर में और अवतार साहब के साथ में, और उसके बाद में जो है नेशनल एंथम आ जाओ नमस्कार सर। हमारे फोर्टिस के चेयरमैन साहब जो है आके माशाल्लाह, और अंतर साहब के साथ नवीद साहब और अहिया खान साहब हमारे डायरेक्टर साहब, प्लीज इधर आइए सर, इधर आइए। और सैफुल्लाह साहब अस्सलाम वालेकुम, आइए सर प्लीज, आइए सर। सर डॉक्टर साहेब साहब, आफ्ताब मुल्ला साहब, हेलो अस्सलाम वालेकुम। हम लोग 8:30 का टाइम दिए थे, माशाल्लाह पूरे लोग 8:30 बजे पहुंच गए हैं। और इससे पहले जो है आप लोगों को मालूम है हर साल जो है इसी तरीके से जो हम लोग जो है सुबह जो है मेरे फोर्टिस के जो है लेकिन लाख के लिए आ गए। வீடியோ போடுறீங்க சார்? अधिनायक जय भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा, who has done more than 30,000 cardiac bypass surgeries or valve replacement. He is the chairman and director of Fortis Group of Hospitals. He is the chairman of Cardiac Sciences and Executive Council of Fortis Hospitals. He is the executive council member of the Association of Cardiovascular and Thoracic Surgeons. He is the founder member of International Society of Minimally Invasive Cardiac Surgeons. He is the former vice president of Indian College of Cardiology. He is a member editorial board Innovations in Cardiac Surgery. He is also editorial board in the website of Cardiac Surgeons of the World. He is a former president and of the Indian Association of Cardiothoracic Surgeons. And the list goes on. He has played a key role in founding the Jayadeva Institute of Cardiology at Bangalore. He was the board of directors of Wockhardt Limited. He was the first in India to perform the off-pump
beating heart bypass surgery in 1991. Minimally invasive bypass surgery in 1995. Minimally invasive cardiac valve surgery in 1996. And awake non-intubated cardiac surgeries in 1999. He is a world pioneer. He was the first in India to perform all these surgeries. The total number of surgeries he has done is more than 30,000. He has 29 index papers, 2 chapters in books, and 11 national orations. Innumerable national and international guest lectures and demonstration of live surgeries in India and abroad. He is a recipient of the Harvard Medical International Lifetime Achievement Award for Medical Excellence in India. Innumerable national and state awards, and the list goes on. It's a great honor to have you all here, sir. We are obliged for having come to our institute. Thank you so much, sir. I request Dr. Imtiaz to present the bouquet to Dr. Vivek Jawali. इसके बाद we have small speeches, 2 minutes each from our paramedical course students. First I call Mr. Hamza Sheikh to speak in Kannada for 2 minutes. Mr. Hamza Sheikh, paramedic students. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಕುರಿತು ನಮ್ಮ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಆದ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ, ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು, ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್, ಮೌಲಾನಾ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಆಜಾದ್ ಮತ್ತು ದಿನಕರ ಮಹಾನ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರನ್ನು ನಾವು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಉತ್ಸಾಹತೆಯಿಂದ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಈ ದಿನವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬ ಎಂದು ಆಚರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅನೇಕ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಲಿದಾನ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೋರಾಟ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ನಮಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಗೆ ಶ್ರಮಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ದೇಶವಾಗಿ ಮಾಡೋಣ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು नबिया अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम नबिहा मरियम है। मैं सेकेंड ईयर की तालिबा हूँ। मेरे मौजे असातिज़ा और मेरे प्यारे दोस्तों को जश्न यौम आज़ादी मुबारकबाद। आज हम यहाँ भारत के 75वीं आज़ादी का जश्न मनाने के लिए जमा हुए हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि आज़ादी का दिन हम सबके लिए एक अच्छा मौका है। हिंदुस्तान की आज़ादी के दिन तमाम भारतीय शहरों के लिए सबसे अहम दिन है और तारीख में हमेशा के लिए जिक्र भी किया गया है। ये वो दिन है जब भारत की अजीम आज़ादी जंगजुओं की तरफ से बहुत से साल की सख्त जद्दोजहद के बाद ब्रितानियों की हुकूमत से आज़ादी हासिल करते हैं। हम हर साल अगस्त को आज़ादी के दिन जश्न मनाने के लिए भारतीय के आज़ादी के पहले दिन को याद रखें और इन अजीम रहनुमाओं को भी याद रखें जिन्होंने भारत के लिए आज़ादी हासिल करने में अपनी जान का कुर्बान की है। ब्रितानी 15 अगस्त को भारत में आज़ादी हासिल हुई। आज़ादी के बाद हमने अपने तमाम मुल्कों में, हमारे मातृवतन में हमारे तमाम बुनियादी हुकूक हासिल किए। हम सबको एक भारतीय बनने पर फख्र महसूस करना चाहिए और हमारी खुशकिस्मती की तारीफ ये है कि हमने एक आज़ाद भारत की जमीन पर जन्म लिया है। गुलाम भारत की तारीफ में सब कुछ जाहिर करती है कि हमारे बाप दादा ने कैसे काम किया था और ब्रितानियों की जुल्माना सुलूक का सामना करना पड़ा। हम यहाँ बैठकर तस्वुर भी नहीं कर सकते कि भारत के लिए आज़ादी कितनी मेहनत से ब्रितानिया की हुकूमत से थी। इसने बहुत से आज़ादी के जंगजुओं से और 1875 साल से 1943 साल तक की जद्दोजहद की जिंदगियों को कुर्बान किया। हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमारे बाप दादा ने हमें अमन और खुशहाली की जिंदगी दी है, जहां हम पूरी रात को खौफ के बाहर सो सकते हैं और पूरी दिन स्कूल या घर में लुत्फ अंदोज कर सकते हैं।
हमारे पास हमारी हुकूमत का इंतजाम और दुनिया में सबसे बड़ा जमहूरियत से लुत्फ अंदोज होने का पूरा हक है। जी हाँ, हम आज़ाद हैं और पूरी मुकम्मल आज़ादी रखते हैं। हमें खुद को अपने मुल्क की जिम्मेदारियों से आज़ाद नहीं समझना चाहिए। मुल्क की जिम्मेदारी शहरी होने की हैसियत से हम अपने मुल्क में किसी भी हंगामी तौर ताल संभालने के लिए तैयार रहेंगे। जश्न में आज़ादी। जज़ाकल्लाह। Thank you, Vidya. Now I request Javeria to come and speak in English. अनाउंसमेंट तो तुम्हें हाँ इधर कर लेते हाँ इधर कर लेते हो रखा सभी Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Myself Javeria, representing Paramedical College. It is an absolute honor for me to stand here and speak a few words on this day. I convey my heartiest greetings to you all on this Independence Day. It was on 15th August 1947 that India was freed from British colonialism by gaining independence, and this is the 35th Independence Day. From being a British colony to independent India, the journey has been tough. Our people have suffered a lot and sacrificed their lives. We should all be proud to be an Indian and admire our fortune to have been born in the land of independent India. From 1857 to 1947, history had noticed several revolutions and sacrifices from our great leaders and millions of others whose names are not even known. Each day on this day, one unfolds the lives of saffron, pure white and divine green with salutes and tribute. A struggle of 200 years with submission, hope to live each day like a free bird, hope to win through all battles, and hope to see the dawn of the rising sun in the nation has led India to learn how to fight back for every situation. Being the citizen of this nation, it's our prime responsibility to pay a heartfelt tribute to all the martyrs, the brave souls, and the valiant soldiers. Create an incredible and prosperous India ahead, and each day blooming in it to make it a better place to live in. I would like to conclude my speech with a note of gratefulness and a bunch of thanks. Happy Independence Day. Thank you very much. Now Tom has come to listen to Dr. Vivek Javeri sir. I have listened that what he is the man कई हजारों लोगों के दिल को सीधा कर दिया है. And the man was responsible for the establishment of Jaydeva Hospital in the city. Such a great man is with us. Sir, you might have what we learned about the activities of the hospital. In addition to hospitals, thousands of students are also being educated in our institution, Huda schools. We have primary schools, we have high schools, we have PU college, degree college. It's a part and parcel of this movement. We are really grateful to be with us. He knows very good Hindi Urdu. He will speak both in Hindi and Urdu so that we enjoy his speech. I welcome you, sir, and request you to address on this occasion. शुक्रिया. इस शिफा हॉस्पिटल के कुंडे के मेम्बरान मेहमानी खसूसी ख़वातीन हज़रात, मुझे बड़ी खुशी आ रही है कि ये बड़ा एक जज्बाती अलग किस्म का टचिंग फंक्शन है ये, और ये काबिल तारीफ भी नहीं है कि काबिल मिसाल है. और मुझे आपने यहाँ बुलाया इस नवाजिश के लिए मैं आपका बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ. हमारी जो कंट्री है, हमारा वतन है इंडिया, इज अ वेरी फनी पैराडॉक्स रेंजिंग फ्रॉम जेटेस्ट ब्लैक टू ब्राइटेस्ट वाइट. अच्छी खबर यह है कि गए 75 इयर्स में हमारा प्लैटिनम जुबली चल रहा है अभी. ये जो व्हाइट डॉट्स हैं ब्राइटेस्ट हो रहे और एक अलग माहौल, अलग फख्र. आज हम जब तिरंगे को देखते हैं तो हर साल ये फख्र बढ़ते जा रहा है. वी आर इन अ वेरी डिफरेंट एरिया ऑफ तारीख टुडे इन इंडिया. तो ये जो फॉरवर्ड जर्नी रही है इंडिया की, मेरे जितने भी क्लासमेट्स हैं सारे अमेरिका में जाके बसे हैं, NRIs. हर साल वालिद वालदानों को मिलने के लिए आ जाते हैं इंडिया. हर साल मुझे बोलते हैं कि विवेक,
कि हम वहाँ से जो पढ़ते हैं खबरें फिरंगियों की, कि हम समझते कि एक ना एक दिन टूट जाएगा इंडिया, एक ना एक दिन यहाँ की डेमोक्रेसी, जमहूरियत, बनाना रिपब्लिक बन जाएगी। लेकिन हर साल आते हैं, हर साल एक हाथी के जैसा ये आगे ही चल रहा है देश। और जब भी पावर चेंज होती है तो सिर्फ बैलेट से होती है, और अब तो माहौल यह है कि हम होपलेसली डेमोक्रेटिक हो गए। तो ये जो हमने सबका लॉजिक उल्टा कर दिया है, इसका मतलब है कि हमें कोई एक सॉफ्टवेयर है जिस पे हम उंगली नहीं रख सकती कि क्या सॉफ्टवेयर है, और ये सॉफ्टवेयर हमें यहाँ लाया है और एक तीसरे गियर में लाया है, और यहाँ से चौथे पांचवें गियर में जाना अभी कोई बड़ी बात नहीं है। मैं कुछ मिसाल देता हूँ आपको आवाम की। मैं गुलबर्गा से आता हूँ। मैं जब छोटा था प्राइमरी स्कूल में, तो गुलबर्गे में मैं पैदा होने के पहले निजाम शाही थी। निजाम साहब थे हैदराबाद में, उनकी रोशनी गुलबर्गे पे तक नहीं पहुंचती थी। फिर आ गया इंडिया, और इंडिया से बन गया कर्नाटक, और कर्नाटक का जो गवर्नेंस था बेंगलोर में, उसकी भी रोशनी राणेबेन्नूर, हुबड़ी तक आके खलास हो जाती थी। हमारे पास उसकी भी रोशनी नहीं पहुंचती थी। फिर आवाम उठ गई, कोई एजुकेशन नहीं था। हमारे पास धट बोलते, जो गंवार है उसे धट बोलते, हम सब अच्छी धट थे। तो आवाम जाग गई, किसी के घर से 1 रुपया, किसी घर से 100 रुपया, किसी घर से 1000 रुपया। हैदराबाद कर्नाटक एजुकेशन सोसाइटी बनी। उसके बाद ख्वाजा बंदे नवाज की उनकी सोसाइटी बनी, शरण बसवेश्वरा की सोसाइटी बनी। इनके सबके बहुत सारे स्कूल्स, कॉलेजेस बेशुमार बने। फिर वहाँ के चर्च का विजय हाई स्कूल बना, और एक बेहतरीन इंग्लिश स्कूल उन्होंने खड़ा किया, और फिर सब सोसाइटियों ने इंग्लिश स्कूल खड़े किए। 2-3 जनरेशन के बाद अब माहौल यह है कि एक जमाना था, कोई यहाँ पे डरा था तक मुलाजिम को गवर्नमेंट के विधानसभा में, तो बोलते थे गुलबर्गे में फेंक दूंगा तुझे। वो एक पनिशमेंट था गुलबर्गा ट्रांसफर। आज गुलबर्गा ट्रांसफर लेने के लिए बहुत बड़ी रिश्वत देनी पड़ती है, क्योंकि लोगों ने पढ़ाई करी, एक स्तर बनाया। बेंगलोर के विधानसभा में हमारा जो हिस्सा था वो हमने ले लिया। वीरेंद्र पाटिल साहब आ गए, धर्म सिंह साहब आ गए, खड़गे साहब आ गए, इतने सारे मिनिस्टर बन गए। हमारे पास बड़ी बड़ी स्कीमें आ गई, वो अपर कृष्णा प्रोजेक्ट हो गया, बहुत पैसा आ गया वहाँ पे, और सारे बच्चे पढ़ गए। और यहाँ आप जाओ IT कॉरिडोर में, सारी हमारी टाइप की कन्नड़ा सुनोगे। आप सान होसे में जाओ, सारी हमारी गुलबर्गी की कन्नड़ा सुनोगे। मैं आड़न का बच्चा, मैं हार्ट सर्जन बन गया, बाद में इस कंट्री के हार्ट सर्जरी एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बन गया। तो ये कोई सरकार ने या कोई शहंशाह ने आके नहीं किया, कि हमने खुद बना। अभी शिफा को देखो, मैं शिफा को तब से जानता हूँ, अल्ताफ को और भाइयों को, जब से एक ख्वाब था, और तब से मैंने देखा कि कितने लड़ के आप यहाँ पहुंचे हो। हर एक, जब मैं शिफा में आता हूँ, हर एक जन अपना अपना काम चींटी के जैसा कर रहा है, और आप बहुत दूर आ गए। ये सारा आपके खुद के मेहनत, जोश, जुनून और जज्बे से हुआ है। किसी ने आके आपको हेल्प नहीं किया, ना सियासती ना मजहबी लीडर। और आगे का भी सफर आपका और कठिन मुश्किल है, क्योंकि आप तकाजा रहेगा क्वालिटी का। आपने क्वांटिटी बना ली, अब क्वालिटी का तकाजा रहेगा ट्रेनिंग, एंड ट्रेनिंग विल गिव यू क्वालिटी पैशनेट पीपल, एंड दैट विल चेंज एवरीथिंग। एंड ऑफ कोर्स वी हैव बीन टॉकिंग, एंड आई एम ऑलवेज देयर। दिस इज a place of whom I think I am a deep friend, and people like Altaf are really rare examples, or they should inspire others to behave like that and spend life like that. दूसरा है कि ये जो शिफा की स्टोरी बोला मैं इंफाल में एक हॉस्पिटल है, शिफा हॉस्पिटल, शीजा हॉस्पिटल। एक पालिन साहब बोल के कॉस्मेटिक सर्जन, उसके ओनर है। वहाँ पे मेरा एक जूनियर गया, लोकराम बोल के मेरा स्टूडेंट, उसको हार्ट सर्जरी वहाँ पे शुरू करनी थी। मैंने थोड़ा स्टडी किया इम्फाल को। मैंने बोला पालिन साहब को यहाँ से 12 किलोमीटर मोहरा बाजार है, उसके बाद बर्मा शुरू होता है। आप अगर इसको खड़ा करोगे ठीक से तो सारा बर्मा का पेशेंट इधर आ जाएगा। मैं गया, उन्होंने मुझे बोला था कि इनॉग्रेट करो हार्ट सर्जरी के सेक्शन। मैं बोला कि उनको खाली रिबन कट करके नहीं ओपन करते, हम हार्ट सर्जरी करते हैं। और मैंने उनको फोर्स करके, उनको थोड़ा हाथ मरोड़ के एक दिन में 4 ओपन हार्ट कर दिए। छोटा हॉस्पिटल था, एक करोली बाईपास 2, एक वाल और एक पेनिट्रल हार्ट। उनका रात तक बस हो गया उनको, और उनका जो सिस्टम था इसको हमने इतना स्ट्रेच किया कि जैसे किसी औरत को ट्रिपलेट हो गया। वक्त मैंने रात में जब मैं वहाँ बात कर रहा था, मैंने बोला कि आप कल से ये लोकराम जो भी हफ्ते में 2-3 सर्जरी करेगा, आपको मजाक लगेगी। आज वो शीजा हॉस्पिटल इतना बड़ा हुआ है और सारा बर्मा को खींच रहा है। और हमारा जयदेव हॉस्पिटल,
मैं बॉम्बे से आया सिर्फ जय जवा बनाने के लिए। रामकृष्ण हेगड़े साहब चीफ मिनिस्टर थे और हमने उनसे झगड़ के ऑटोनॉमी ली। दैट वाज द फर्स्ट एग्जांपल। और ऑटोनॉमी से सारे आईएएस ऑफिसर हिल गए कि हमारे हाथ से चले जाएगा सब कुछ, और उन्होंने बहुत सताया हमको। फिर भी हमारी फंडिंग हमने खुद खड़ी करी। सारा स्टोरी का छोटा सारांश ये है कि आज देखो जय जवा कहाँ पहुँच गया, बहुत दूर पहुँच गया। और ये किसने बनाया? हेगड़े साहब ने, बंगारप्पा ने, मोइली ने, किसी ने नहीं बनाया, आवाम ने खुद बनाया। मैं गुलबर्गे में जब था, मेरा सबसे अच्छा दोस्त था एक जहीर अहमद खान, वो अभी अलाबामा है ना, अमेरिका में गिरियाट्रिस्ट थे, बड़ा फेमस। उसके जो वालिद थे डॉक्टर मिस्टर गुलाम हाफिज खान, वो बड़े लायर थे वहाँ। इनका बड़ा भाई जहीर का यहाँ पे आपसे जुड़े हुए मसूद साहब घोरी। तो मेरे जब भी डिबेट हो रहा था तो टॉपिक लेके मैं गुलाम हाफिज खान के साथ करता था, और वो मुझे 5 मिनट में सारे पॉइंट बताते एक स्टेप को, और ठहर बोलते थे, और 5 मिनट में अगेंस्ट भी पॉइंट बताते। तो उन्होंने मुझे एक कोट बोली थी, एक सेंटेंस बोला था, वो बैठ गया यहाँ पे मुझे। उन्होंने बोला था कि विवेक, कौमें और सल्तनतें शहंशाहों से नहीं बनती, आवाम से बनती। और ये बात बिल्कुल सही है। हम जो भी है हमारे मेहनत से, हमारे आवाम से है। तो दुनिया में अभी मैं देख रहा हूँ कि इतनी तशद्दुद मची है, लोग हिल गए। यही मौका है हमें कि जो खिलाफत मूवमेंट वाला एक जज्बा था, सारे एक हो गए, सारी कांग्रेस पार्टी, सारे इन मुसलमानी लीडरों के पीछे थे, और एक जज्बा बन गया। उस जज्बे से बाहर निकला नॉन कॉर्पोरेट मूवमेंट एंड सारी मूवमेंट है, और वहाँ से शुरू की लड़ाई सारी। तो हमें वो जज्बा बना के रखना है, ना 1857 का जज्बा। 1857 में इतनी बड़ी लड़ाई हो गई आज़ादी के लिए, हम उसे आज़ादी की जंग बोलते हैं, वो लोग फिरंगी उसको गदर बोलते हैं। लेकिन उस टाइम इतना बड़ा मौका था, सारे लोग जुट गए थे, लेकिन हम बढ़ गए। और जो सयाजीराव शिंदे है या ये रोहिल्लास थे, इन सब ने मिलके लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे सबका उसको मार दिया, फिरंगी सब जुड़ गए, और वो सारा तितर पितर बिखर गया। परिणाम क्या निकला? उसका रिजल्ट ये निकला कि 1857 से 1947 तक 90 साल हम फिर उनके तलवे चाटते रहे, बिखर से गए। आपने हमें यहाँ पे इधर बुलाया, मुझे इतनी इज्जत दी, इसके लिए फिर से मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। जय हिंद और जय कर्नाटक। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। आपने इतनी अच्छी बातें सहल इंग्लिश उर्दू में सुनी। आपने बोला कि इट्स ऑल नॉट ड्यू टू द लीडर्स बट यू ऑल, एवरी वन इज इम्पोर्टेंट फॉर अस। सब मिलकर करेगा, सल्तनतें होते हैं। थैंक यू फॉर द गुड मैसेज सर, विल रिमेंबर दिस फॉर इयर्स टू कम। थैंक यू वेरी मच। एंड दैट यू आर फ्रॉम गुलबर्गा, वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस, जहाँ पर आज उस दरगाह की वजह से, वहाँ के बुजुर्ग की वजह से यूनिवर्सिटी बन चुकी है। थैंक यू वेरी मच। इसके बाद मैं आज का जो माहौल बना है, उस माहौल को मुहैया करने वाले, साथ देने वाले, और ख़ासकर हर काम में हमारे हाँ मिलाने वाले जनाब नवीद अहमद खान, पॉजिटिव थिंकर, से गुजारिश करूँगा कि आप भी अपने ख्याल 2-4 मिनट में सुनते हैं। थैंक यू। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Good morning, ladies and gentlemen. Respected Chief Guest of the day, Janab Dr. Jawli Sahab, a great personality. Dr. Mushtaq Mohammed Sahab, further, rest of the doctors, paramedical forces, my dear friends. My heartfelt greetings to you one and all. Happy Independence Day. Congratulations. It's a great honor for me to be the part of this event, that too in this Shifa hospital. I'm very happy and thankful to Dr. Altaf Saab, Ishtiyaq Saab and Mushtaq Saab
for giving me an opportunity to be the part of this event. As you all know that we are all passing through a very difficult phase. This pandemic has taught us too many lessons. This pandemic has put us in a lot of difficulty, lot of test, and this pandemic has separated us from our elders, our own people. This pandemic has really disturbed the whole world. So at this moment, in this situation, in both the years of this pandemic, I should say, according to me, this 2 years of pandemic should be dedicated in the name of the health workers, doctors, the paramedical forces. Because these people have done a lot of services to the humanity. They have sacrificed their time, their life, their health, and everything, whatever is possible during this period. And they have done and they have been doing it. Along with the healthcare workers, some of the NGOs also, they have done a lot of work, services to the humanity, be it arranging of oxygen or arranging of beds, arranging of medicines, to an extent attending the last rites, the funerals of the dead ones. It's really a very testing time, and a great job has been done for the humanity. I should thank each and every one, not only the doctors, especially, I have been associated with the Shifa Hospital for a long time. And for this 2 years of this pandemic, the work what they have done, I was just working with this hospital as a volunteer, admitting, bringing the patients from various places, getting them admitted, requesting our Mushtaq Sahab for the beds. We have seen what is life and what is the death during this 2 years of time. Really, this hospital has served a lot to the people who have been suffering from this COVID, and especially our Dr. Altaf Sahab, Dr. Ishtiaq Sahab, and the team who have been working day and night. It's not easy to work under this pandemic situation. I have seen the doctors wearing the PPE suit, not for 24 hours or 2 days or 3 days, months together, without bothering their health, without bothering, putting all the life, everything under the great risk. They have served both the doctors and the paramedical forces. I myself used to go to the COVID ward or the ICU to see some of the patients whom I had admitted. It was horrible even for half an hour to wear the PPE suit, get into the hospital and just come out. It will be sweating, will be drenching. But it is all the efforts and the doctors and the paramedical forces who are under this PPE suit for all the time for the past 2 years, and that too during the summer. Many of the hospitals, they don't have the IC. They switch off the IC because of switch off the AC because of this viral
there will be a lot of viral load and there will be a lot of spread of virus inside the ward. So without AC, they have been in the wards and the hospital with the PP sword and putting all their lives, everything under the great risk. It's really a big sacrifice. I should thank everyone who have been working and serving this during this pandemic. Also, I pray Allah subhanahu wa ta'ala to give them the best of the best rewards for all these people who have been the part of this pandemic. And also, I pray Allah subhanahu wa ta'ala to those NGOs who have put their lives under the great risk and have been serving the humanity, especially during the funerals, because we have seen this pandemic. The own kith and kin, they never used to come closer to the dead body because of the spread of the virus. And these NGOs, they have done really a great job putting their life into the great risk. I should also thank to them, and also I should pray that Allah subhanahu wa ta'ala should give the best of the best reward for all these people. Also, I pray Allah subhanahu wa ta'ala to just take this hospital to the heights and make things easy for all of us. Thank you so much. Jazakallah khair. Jai Hind, Jai Karnataka. Seen things actually. It is not only Dr. Top, that is there, but there are so many people who work with them actually. Housekeeping staff se photo, nursing staff se photo, whether it is Zahir, whether it is Ruknuddin, whether anybody for that matter, डे एंड नाइट अपनी जान हथेली में लेके किया. ये पैसे कमाने के लिए खिदमत का फर्ज था, किसी को नबी बुला रहे थे. They have seen lakhs of, sir, I seen they have given more than 1.5 crores as discount. Money was not the bar. जो भी आए थे, जो लिए ले लिए, जो खासकर एसोसिएशन जो मिला उसके लिए. And then we have two things. We give lot of discounts. In addition to that, we have Tatab fund. From that we give lot of what you call actually help to them. हमारा मकसद जो भी पेशेंट आता है बगैर ट्रीटमेंट के न जाए. So mashallah, your blessing should be there with us. Inshallah, in coming days we will come up. Thank you very much. इसके बाद मैं वो हस्ती को बुला रहा हूँ जो अपनी जिंदगी इसके लिए लगा दिया है. दिन रात खाना पीना सोना सभी उनके लिए हॉस्पिटल तालीम है. वो है डॉक्टर मुश्ताक साहब. I request him to give his presidential address. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. मैं एक ग्रेजुएशन सेरेमनी था. Because I start informally, graduation ceremony था सभी प्रसाद में. Way back in '84, when मौलाना रियाजुर रहमान साहब जामा मस्जिद के जो इमाम साहब थे, जो माशाअल्लाह बेंगलोर नहीं पूरे कर्नाटक इंडिया के डिप्टी थर्टन थे, तो he was graduating out. So when he went on the stage, मैं जो है उस वक्त उनको जो ग्रेजुएशन के जो सर्टिफिकेट मैं देने वाले थे हज़रत जी मौलाना निज़ामुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह थे. तो जैसे ही गए तो सर्टिफिकेट हाथ में थी और सामने गए. ये सर्टिफिकेट हाथ में रखकर डू डिजर्व दिस, क्या आप इसके जो है मुस्तहिक़ हैं. सवाल था किसका? मौलाना निज़ामुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह का, रियाजुर रहमान साहब. अब पता नहीं था इनको क्या बोलना. तो अभी जो है मुफ्ती असद साहब रहमतुल्लाह अलैह जो अभी नसीर दुआन थे, तो उन्होंने वो खड़े हुए थे, कहा कि हजरत से दुआ कर, बोलिए दुआ कर दो. हजरत आप दुआ कर दीजिए. तो यही सवाल जो है मेरा हमारे मुझसे भी है, हमारे कंसल्टेंट से भी है, हमारे हेल्थ वर्कर से भी है. ड्यू डिजर्व दिस एटमॉस्फेयर. आप क्या मुस्तहिक़ हैं इस जो है इतनी बड़ी हॉस्पिटल के? क्या सजावार हैं? डू यू थिंक वी हैव डन दिस? एब्सोल्युटली नॉट. इट इज़ अल्लाह's mercy he has given us. अब हम जो है इन लोगों से चाहेंगे कि लोग अपने वेल विशिंग और हमारे दुआ कर दें. बिकॉज अब गेम शुरू हो रहा. क्या हो रहा? वी आर इन द फील्ड. गेम अब शुरू हो रहा. अगर हमें समझते हैं कि हम माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गए हैं, हमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं. लेट इट बी आर जस्ट थिंक दैट माउंट एवरेस्ट चढ़ गए हैं तो कोई और करने की चीज़ नहीं है. तो गेम स्टार्ट्स नाउ. किसी शायर ने सही कहा, इब्तिदा इश्क में रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या. मैं सिर्फ देख रहा था इतने जो है ये दरख्त किसने लगाए? आपने लगाए. सिर्फ एक ग्रीनरी के लिए कुर्बान चल जाना. वी आर इन ए गार्डन सेलिब्रेटिंग इंडियन इंडिपेंडेंस.
Is it not so? Right round जो है, by from there to there, and the way, mashallah, our maintenance team, we have to really thank our maintenance team. Everything has been done by our maintenance team without any professional help. For your kind information, at 25% of the cost, what it will be incurred to others. At 25% of the cost. समझ में आई बात? तो वही जो है, now we have done our bit and we will not stop at it. Further जो है आपको facilitate करेंगे, जैसा विवेक जोली साहब ने सही इशारा फरमाया, यह क्वांटिटी नाउ एंड भाई मंजिल आगे और टफ है. इफ वी रिलैक्स, ऐसा ही है जैसा वो खरगोश दौड़कर जो है जो रिलैक्स कर लिया तो कछुआ क्या करेगा, टॉर्टोइस क्या करेगा, मंजिल पालेगा, हम देखते रह जाएंगे. तो अब इस जमाने में एक मैसेज मुझे आपको आज करीम देना है. भाई जो है जो लोगों ने कुर्बानी दी और इंशाल्लाह विल बी रिवॉर्डेड एंड दे आर रिवॉर्डेड ऑल्सो. सबसे बड़ी चीज जो है दे हैव डाइड ए पीसफुल डेथ, दे हैव डाइड ए डेथ, भाई शानदार डेथ. हम जो है वो जो है मर के जो है जीते हैं और हम जी के मरते हैं. आज जो है जो सेल्फिश, सेल्फ सेंटर्ड, ग्रीडी अगर कोई है तो उसकी जिंदगी क्या है, जी के मर रहा सो, मर के जी रास्ते में वो मर के जीते थे. तो दे हैव बीन रिवॉर्डेड, दे हैव बीन माशाल्लाह, दे हैव डाइड ए पीसफुल डेथ, दे हैव डाइड ए शानदार डेथ एंड ऑलमाइटी विल रिवॉर्ड देम. अब जो है क्वेश्चन जो है से हम सैल्यूट करते हैं उनको, हम जो है उनका जो है तहे दिल से तहसीन करते हैं. ये कहकर जो है मैं सीधा तरफ निकल गया, बाएं तरफ निकल गए, कोई जाकर जो है कंफर्ट जोन में चले गए, तो भी जो है आई थिंक वी आर रियली मिस्टेकन. जिस तरह जो है आप विवेक जोली साहब की बातों में काफी गौर से सुन रहे होंगे, तो वो कह रहे थे कि नेक्स्ट जनरेशन को कुछ देना है, देंगे इंशाल्लाह, देंगे ना, क्या देंगे, क्या भी देंगे. अब जीरो से बचने क्या करें, क्या देंगे भाई, एक जो है ऐसी हॉस्पिटल देंगे जहां जो है अफोर्डेबल बाई क्वालिटी केयर, इक्विटेबल केयर, where none is deprived of the care because of want of finance, and they are treated as royal guests, they are not treated as patients. We feel we are responsible for that, and on the day of judgment will be questioned regarding that. We have not become doctors by default, we have become doctors by design of Almighty Allah, and we have been posted here not to just by जो है sway to according to whims and fancies, not to just by just think what we are doing is right, but we have some divine actually revelation and through which we have to work and we have to prove yes we are unique, we are something. And that's what जो है मौलाना जब कुरान मजीद की तिलावत कर रहे थे उसमें दो इम्पोर्टेंट मैसेजेस थे आज. भाई अगर उन दो इम्पोर्टेंट मैसेजेस को हम लेकर जाएंगे, एक या अय्युहल्लज़ीना आमनु क़ूलू क़ौलन सदीदा, भाई सीधे सीधे हो जाओ, बात सच्ची कहो, बी ट्रूथफुल, be truthful to yourself, truthful to your patient, truthful to your subordinates, truthful to your instrument, truthful to your time. Don't try to just by on the way बोलो ना को, आरिंगे रखता on the way बोलो, अल्लाह के वास्ते on the way बोलो ना को, in the way भी बोलो ना को, on the way बोलो ना को. Be there. Yes, that's it. Rolling stone will not gather masses. And by that definitely जो है if we have done something in pandemic, by Dr. Naveed bhai was mashallah praying for us. We have to pray for आवाम, which जो है माशाल्लाह विवेक जी साहब बार बार कह रहे थे, आवाम हमको जो है उसका सीना दी है. अगर वो आवाम हमको जो है ब्रॉडवे में हम पर ट्रस्ट न करते, सीना ना देते और फिर जो है अपने पेटों को चाक ना कराते, अपने हार्ट को हमारे हाथ में ना देते, तो क्या करते हम लोग, हम भी जो है कोई ना कोई इंग्लैंड भाग जाता, कोई जो है यूएस भाग जाता, कोई मिडिल ईस्ट भाग जाता, इतना ही करते थे ना. तो भाई जो है आई डेडिकेट द होल शिफा टू दोज पीपल इन ब्रॉडवे, the whole those people mashallah who have just given themselves, they have taken the risk, no problem, they are ready to die at your hands. बाकी जो है everything must be thinking in my way कि प्री कलेक्ट जो हाल था ब्रॉडवे में 3 बिल्डिंग में और जो खुसूसन सीजरेंस के लिए हम शिफ्ट करते थे और जो हमारी ओटी थी, जो हमारा 4 बेडेड आईसीयू था, वही जो है अगर वी रिकलेक्ट दैट वी रियली जो है वी हैव बिल्ट अप एक्चुअली ऑन देयर टेस्ट, विल नॉट फॉरगेट देम ना इंशाल्लाह, भूल जाएंगे इंशाल्लाह यार. To propose vote of thanks, I request Dr. Sadir to come and propose vote of thanks. क्योंकि बातों में हमारे चीफ गेस्ट ने कहा कि जय देवा की बात जब आई तो सादिर का नाम आ गया है. Request him to propose.
I'm here to propose the vote of thanks on behalf of Shifa Hospital Procurement Committee. I thank our chief guest, Dr. Vivek Joly sir, for having made time out of his busy schedule to join us in the celebrations of Independence Day. So thank you very much, sir. I also thank our guest of honor, Mr. Naveed Ahmed sir, for having taken time out of his busy schedule and joining us for this occasion today. Thank you, sir. I thank our directors and my fellow colleagues and hospital staff for having made this program possible. And like CMD sir was telling, I thank our maintenance department who have been instrumental in facilitating and making this program what it was. Thank you very much, sir. And I would like to conclude by thanking Almighty Allah for having provided us this platform and this making this program a success. Thank you very much. Thank you very much. Well,